CBI files charge sheet in Hathras incident. Victim was gang raped and murdered. All four accused charged with gang rape and murder. Dying declaration, base of charge sheet. Good evening, you're watching To The Point. I'm Preeti Chaudhary. So this incident, Hathras, was an incident that had shook the conscience of the nation, but it was also an incident that had completely divided the country as well, especially the village where this young victim came from. The CBI, under a lot of pressure on the Uttar Pradesh government, took over the case on the 11th of October. They were duty-bound under the SC/ST Act to file a charge sheet within 90 days. They've done so, and they feel that it was gang rape and murder. The Central Bureau of Investigation has now filed a charge sheet, viewers, in the Hathras incident. The charge sheet against the four accused was filed today at a local court by the CBI in Hathras. The charge sheet has invoked charges of gang rape under section 376, 376A and 376D and murder, section 302 of the IPC. This is the list of the charges against all four accused. Not one, not two, not three, but all four accused have been charged with gang rape and murder. Besides, also being charged under sections of the SC/ST Act. The charge sheet against the four accused was filed on the basis of the last statement, the dying declaration by the victim on September 22nd. The four accused are currently in judicial custody. In its investigation, the CBI has looked into the role of the four accused, who were also put through different forensic tests at the forensic laboratory of Gandhinagar. The CBI investigators had also met doctors at the Jawaharlal Nehru Medical College and Hospital, where the young victim was treated after being gang raped on September 14th, much before she was brought to the Safdarjung Hospital in Delhi. In an official statement the CBI has just given out, it has said that the CBI has today filed a charge sheet against all four accused. Sandeep Lavkush. We're going to give out the names there. Sandeep Lavkush, Ramu and Ravi. The case was registered by CBI on October 11th on a request from the Uttar Pradesh government and further notification from Government of India. To hark back to the incident that had taken place, a 19-year-old young girl, she was Dalit, was allegedly gang raped and murdered by four upper caste men in Hathras. This happened on the 14th of September, allegedly gang raped and murdered. She succumbed to her injuries a fortnight later at Delhi Safdarjung Hospital. The victim was cremated in the dead of night near her home on September 30th. There was a lot of media glare and pressure. Her family had then alleged that they were forced by local police to hurriedly conduct her last rites. Local police officials, however, claimed that the cremation was carried out as per the wishes of the family. चारों आरोपियों को आरोपी बनाए हैं, चारों उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल किए, चारों के खिलाफ। क्या क्या धाराएं हैं, क्या आधार बनाया है? धारा हैं 302, 376A, 376D और 325 SC/ST Act। I want to immediately cut across to my colleague Arvind Ojha, who's joining us, who's been at Hathras. Arvind, 90 दिन दिए जाते हैं सीबीआई को SC/ST एक्ट के अंदर एक चार्जशीट फाइल करने के लिए। उन्होंने चार्जशीट फाइल की है और पुख्ता किया है कि उनके हिसाब से, उनकी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से चारों अक्यूज्ड हैं गैंग रेप और मर्डर के। और जो बिना है, जो बेस है इस चार्जशीट का, अरविंद, ये क्या सिर्फ डाइंग डिक्लेरेशन है या और भी चीजें हैं? जी देखिए, जो डाइंग डिक्लेरेशन है ये बहुत अहम है। 22 तारीख को जो लड़की थी, जो पीड़िता थी, उसने जो बयान दिया था उस आधार पर चार्जशीट दाखिल की है। लेकिन उसके अलावा उसके सपोर्ट में एविडेंस भी कलेक्ट किए है सीबीआई ने।
4 जो आरोपी हैं अलीगढ़ में जेल में बंद है, उनको गुजरात के गांधीनगर ले जाया गया था, उनका लाई डिटेक्टर टेस्ट कराया गया था, उसकी एफएसएल की रिपोर्ट है। इसके अलावा कॉल डिटेल्स और तमाम ऐसे एविडेंस है, लोगों से पूछताछ है, गांव के लोगों से पूछताछ है, पहले का जो हिस्ट्री रहा है दोनों फैमिली के बीच, वो हिस्ट्री तक को सबमिट किया गया है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है डाइंग डिक्लेरेशन, जो पीड़िता ने बयान दिया था, जिस पर जमकर राजनीति भी हुई थी। सीबीआई ने उसी को माना, उसको बेस बनाकर चार्जशीट दाखिल की है चारों जो आरोपी है उनके खिलाफ। एक चीज और इम्पोर्टेंट है, जिस तरह से शुरुआत में जांच के बाद जो यूपी पुलिस के बड़े अधिकारी थे उन्होंने कैमरे पर आकर ये बोला था और कि जो पीड़िता है उसके साथ रेप नहीं हुआ है, तो यहाँ जो चार्जशीट है इसमें धारा 302, 376D यानी गैंगरेप की धाराओं में एफआईआर चार्जशीट दाखिल की गई है। तो जिस तरह से शुरुआत में यूपी पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे थे, चार्जशीट में भी कहीं ना कहीं सवाल यूपी पुलिस पर खड़े होंगे। जिस तरह की जांच की गई थी और बड़े अधिकारी ने कैमरे के सामने बयान दिया था, यहां तक कि आगरा के लैब से जो जांच कराई गई थी वो भी दी गई थी। तो फिलहाल की अगर बात करें तो आज सीबीआई ने अदालत में तकरीबन 2000 पेज की चार्जशीट, जो 4 आरोपी हैं रामू, संदीप, लौकुश, इनके खिलाफ चलिए आईपीसी की धारा 302, 376D इनकी धाराओं में एफआईआर चार्जशीट दाखिल। अरविंद, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने का। I just want to, go across right now. I'm going to be joined by the victim's brother in just about 20 seconds. Before I do that, it's important, and he's joining us live right now. But before I do that, I want to take our viewers through the dying declaration of this girl, because this charge sheet's main base is the dying declaration. Of course, it's been bolstered with other investigations as well. Listen in to the girl, and I will go across to her brother in just about a minute. कब एक बार और रेप करने की कोशिश की थी पहले? अच्छा, इससे पहले रेप करने की कोशिश की थी लेकिन क्या हुआ? भाग आए थे। कुछ हुआ कि नहीं? अच्छा अच्छा, तो रवि कह रहा था कुछ हुआ कि नहीं? हाँ, अच्छा, ये दोनों मिले हुए हैं, तो उस समय तो बच गए आप। फिर उस दिन जिस दिन आपकी चोट लगी है उस दिन रेप हुआ है? अच्छा, दोनों ने किया था, कोई और भी था? वो दोनों थे और बाकी सब भाग गए थे। अच्छा, बाकी सब भाग गए थे। जब मम्मी को देख के भाग गए थे, तो आप उस समय होश में थे? थोड़ा सा होश था। अच्छा अच्छा, तो रेप हुआ आपके साथ, उसके बाद क्या किया? मेरी मम्मी ने मुंह में पानी डाला, तो कुछ नहीं, क्या हुआ? Four accused have been charged of gang rape and murder. Why is it important, viewers, that young girl who's dead, who you heard, was character assassinated for months, if you remember. Not just character assassinated, her family was charged of honor killing. All of that went down. All of that went down. However, the CBI, after investigation, has today said she was gang raped. She was murdered. Let's cut across to the brother of the victim. He's joining us live. I also have with me Seema Samriddhi. She's representing the victim who is no more. मैं पहले जो भाई हैं उनके पास जाना चाहूंगी। थोड़ी संतुष्टि है अभी आपको कि जो सीबीआई है उन्होंने चार्जशीट दाखिल की है, चारों अक्यूज को गैंग रेप और मर्डर का बोला है उन्होंने कि उन्होंने ही ये किया है। थोड़ी संतुष्टि है अभी? थोड़ा लग रहा है कि न्याय मिल सकता है, आपको मिलेगा आगे? हाँ मैम, थोड़ी संतुष्टि हुई, हमें एक सीढ़ी अभी हासिल हुई है और आगे न्यायपालिका हमें इंतजार रहेगा कि हमें किस तरह से जो न्याय देगी उसका इंतजार रहेगा हमें। अभी आप न्यायपालिका से क्या मांगते हैं, क्योंकि बहुत कुछ हुआ है, जिस गांव में आप हैं वो गांव भी बटा हुआ है इसके ऊपर, क्योंकि ये चाहे जो भी बोले जात का नहीं है, पर इसमें जात एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। अब आप क्या मांगते हैं न्यायपालिका से? न्यायपालिका से यही मांगते हैं कि आज चार्जशीट साथ करिए। आज मेरी बहन के साथ ऐसा हुआ और किसी बहन के साथ ना हो, जिस वजह से अच्छी जो कड़ी से कड़ी सजा दी जाए इन लोगों को। अभी भी अपना केस को क्या आप दिल्ली मूव करना चाह रहे हैं या अभी संतुष्ट हैं जैसा है?
नहीं, हमारा जो केस है हमने दिल्ली ट्रांसफर के लिए बोला है, हमने पहले भी हमने बोला था, अभी बोल रहे हैं दिल्ली ट्रांसफर के लिए हमने। अभी क्यों आपको लग रहा है, क्योंकि सीबीआई के हिसाब से तो जो भी आप कह रहे थे वही उन्होंने बोला है, तो अभी आपको क्यों डर है कि आपको न्याय वहां नहीं मिलेगा? क्योंकि हमें अभी भी, क्योंकि हम लोग यहाँ पर सुरक्षित नहीं रह सकते ना, तो हम लोग वहाँ से ठीक ठाक कर सकते हैं कुछ भी चलिए अपने। हाँ आप जी। मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके पास अभी वापस आऊंगी। जो आपकी बहन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, जो उनकी लॉयर हैं, आना चाहूंगी। सीमा समृद्धि joins us. Miss Samriddhi, you've taken the case of this young victim today. Do you feel a sense of vindication, at least for her, because she was character assassinated even in death? यस मैम, सबसे इम्पोर्टेंट जो आज एक चार्जशीट में एक चीज क्लियर हो गई कि जिस तरीके से उनके चरित्र हनन किया गया, और जो एडीजी उत्तर प्रदेश ने स्टेटमेंट दिया कि रेप नहीं किया गया, उसके बाद जो एक्यूज्ड के पर्टिकुलर समाज से, उनके कास्ट से आने वाले लोगों ने खाप पंचायत बैठाई और इस परिवार को धमकाया कि आप लोग इसको वापस ले लें। मेरे पास बहुत सारे ऐसे मैसेजेस हैं जो ये इनके भाई को धमकाया गया, और अभी भी इस परिवार को वहां पर डर है कि वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। मैम, सबसे बड़ा इशू है कि सीआरपीएफ है, कब तक वहां डिप्लॉय रहेगी, उसके बाद क्या होगा। 15 दिन पहले मैं हाथरस परिवार से इन लोगों से मिलने गई थी। मैंने देखा, जब मैं वापस आ रही थी तो वो सारा एरिया का मैं वीडियो बनाना चाह रही, लोग मुझ पर भी कमेंट कर रहे थे कि आप क्या वीडियो बनाना है, आप बना लीजिए, हमारे बच्चे तो निर्दोष छूट करके आएंगे। क्योंकि उनके जहन में ये बात बैठ चुकी है कि सिस्टम एक्यूज्ड के साथ मिला हुआ है। क्योंकि शुरुआत से अगर इस केस को हम देखेंगे कि डाइंग डिक्लेरेशन जो अभी आपके टेलीविजन पर चल रहा था वो बाद का है, लेकिन सबसे फर्स्ट वाला जो डाइंग डिक्लेरेशन है, जब वो पीड़िता जो बेटी थी वो चंदपा पुलिस स्टेशन में लेटी, जिसमें वो बता रही कि उनके साथ जबरदस्ती की गई, उसके बावजूद भी एफआईआर प्रॉपर सेक्शन में फाइल नहीं की गई थी। तो क्या इसके लिए वहां की पुलिस रिस्पॉन्सिबल नहीं थी? उनको इस चार्जशीट में एक्यूज क्यों नहीं बनाया गया है 201 CRIPC में? और एडीजी उत्तर प्रदेश का जो स्टेटमेंट था कि रेप नहीं किया गया, जिसके वजह से वहां पर माहौल खराब किया गया, तो वहां उनको क्यों नहीं एक्यूज बनाया गया? तीसरा, जो डीएम ने रात में उस बेटी का क्रिमेशन करा दिया और हाई कोर्ट में एफिडेविट फाइल कर रहे हैं कि हमने प्रॉपर प्रोसेस के तहत करवाया है, जो लास्ट रिचुअल्स हैं। तो मैम, लास्ट जो रिचुअल्स हैं, जब फैमिली से आप पूछिए, बात कीजिए, उनके भाई जुड़े हुए हैं, कि जो भी अनमैरिड गर्ल होती है उसको दफनाया जाता है, ना कि जलाया जाता है। इन्होंने कैरोसिन डाल के जलाया, उसके बावजूद भी इस चार्जशीट में डीएम हाथरस को एक्यूज क्यों नहीं बनाया गया? अभी तक उनको सस्पेंड क्यों नहीं किया गया है? ये बहुत बड़े सवाल हैं। तो मैम, ये लड़ाई बड़ी है। अभी इनिशियल स्टेज में ये चार्जशीट फाइल की गई है, इसमें जो सेक्शन फाइल किए गए हैं, जो दर्ज किए गए हैं चार्जशीट में, उससे मैं संतुष्ट हूँ। लेकिन ये जो लोग जिनकी कॉन्स्पिरेसी के तहत ये माहौल खराब किया गया, इस परिवार का जो हैरेसमेंट किया गया, क्योंकि बहुत सारे सवाल इस परिवार पे खड़े किए गए। जो इनका ब्रदर है संदीप, उस पर एलिगेशन लगाया गया कि उसने अपनी बहन को मारा, जबकि हमारे पास वो वीडियो अवेलेबल है जहां ये भाई उनका वसुंधरा जो लैब में काम करता वहां पर मौजूद था उस टाइम, जिस टाइम पीड़िता की साइड क्राइम किया गया। तो ये हैरेसमेंट जो इस फैमिली का किया है डीएम ने और लोकल पुलिस ने, एवीएन की एडीजी उत्तर प्रदेश ने, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? आज इन्होंने इस केस में किया, कल किसी और केस में करेंगे। तो क्या उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ये मैसेज देने में असफल नहीं हो रही है कि हमारे ऑफिसर्स, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर इस तरीके का क्राइम और नेग्लिजेंसी करते रहेंगे और उनको आप इसी तरीके से एक्यूज नहीं बनाएंगे? आज इस केस में किया, कल किसी और में करेंगे। तो जस्टिस उस डिसीज पर्सन, उस पीड़िता को मिलेगा। ये हमारी लड़ाई कोर्ट में अभी चलेगी। लेकिन इस परिवार का जो हैरेसमेंट किया है डीएम हाथरस, इस परिवार को कुत्ते शब्द से बुला रहा है। ये हमारे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है मैम, जो कि हम बाद में इनको हम 156(3) में कोर्ट में मूव करेंगे एक पिटीशन, और हाई कोर्ट से भी हमारी यही डिमांड है कि डीएम हाथरस को सस्पेंड किया जाए और इनके ऊपर भी 201
IPC 499 जिस तरीके से उस बेटी का चरित्र हनन किया गया, 166A एंड 295A की इन्होंने जिस तरीके से डेड बॉडी को जलाया, ये सब क्रिमिनल काम किया है इन्होंने, तो अभी तक ये अपने पोजीशन पे पद पर क्यों बैठे हुए हैं? ये तो पर्टिकुलर इस समाज को, जो ये गरीब बच्चा हमारा जो पीड़िता गरीब परिवार की थी, जो पर्टिकुलर समाज थी, उस समाज को तो आप यही मैसेज दे रहे हैं कि हमारे कंट्री के अंदर आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता आया है और होता जाएगा, एक्यूज भी करेंगे और सिस्टम भी करेगा। तो ये कितने बड़े सवाल हैं। अभी तक मेरी भी डिमांड है, अभी जो फर्दर अगर सप्लीमेंट्री ये चार्जशीट फाइल करना चाहेगी सीबीआई, कि इन लोगों को भी एक्यूज बनाया जाए और इनके अगेंस्ट भी चार्जशीट फाइल हो। जी सीमा जी हमारे साथ आप बने रहिए। You know, it was 3 months, and if this story has not divided the country, not just the village, because the village was divided on the lines of caste, because these were upper caste men. She comes from a Dalit household. The politics which went on and the pressure. Our reporters were there on the ground and they know it was immense amount of pressure. You were working against the grain of a system at that point of time. I want to cut across to my colleague Milan, who was back at the Hathras village today. Milan, what's the sense that you picked up? Because we've had our reporters, our colleagues who were there the night that she was cremated. The family said forcefully, the administration said that it was at the will of the family. It's open to investigation. But we saw what we did, and we know the kind of pressure that there was in terms of even reporting. And today, somewhere down the line, there is vindication. What's the sense that you picked up from the village? Well, Preeti, you're absolutely correct. India today has been ahead in covering the victims' families' plight during this entire controversy that erupted after the incident occurred with her on 19 September. And it was only after she died in Delhi's Safdarjung Hospital, when her body was brought back here in the village, that a lot of other things was said. She was cremated in the dead of the night. That also created a lot of controversy, as the family had initially not agreed to her cremation. But today, Preeti, after the CBI charge sheet was filed in the court, there was a sense of calm in the village. Have I seen that about 80 personnel have been protecting the family, because the village happens to be full of upper caste families, and this one happens to be the only sensitive community in the entire village of Phoolgadi, and that is where the government has provided them protection. Right. But yes, certainly a sense of vindication after the CBI has booked all 4 accused in stringent sections of rape, gang rape, murder, as well as SC/ST Act, nullifying what the UP police was claiming, that the girl was not raped. You know, Milan, stay on with me. I want to go back to the brother. अब आप जो गांव में आप रहते हैं, आपने खुद ही बोला है, आप अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, अनसेफ महसूस करते हैं. अभी आपको, क्योंकि अभी ये चार्जशीट फाइल हुई है, इससे थोड़ा डर है क्या? हाँ, तो हल्का डर तो है मन में, क्योंकि अभी तो हमारे यहाँ पे CRP है, घर पे मौजूद है हमारी सुरक्षा के लिए. आगे जब ये नहीं होगी तो हमें तो अभी हल्का सा डर तो लग रहा है. चार्जशीट लग गई है, अब आरोपी बन गए वो लोग, अब पता नहीं क्या इनके दिमाग में चल रहा होगा, इनके परिवार वालों को और भी जो क्षेत्र है. सीमा समृद्धि, how are you going to go now legally with this? आपका अगला मूव क्या है लीगली? ट्रांसफर पिटीशन, सुप्रीम कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक ट्रांसफर पिटीशन मूव करेंगे, और इस परिवार का जो भी योगी आदित्यनाथ जी ने कमिटमेंट किया था कि इस परिवार को एक मकान दिलवाया जाएगा, एक परिवार के सदस्य को नौकरी दिलवाई जाएगी, और इस केस को फास्ट ट्रैक किया जाएगा. मैम, डेफिनेटली जो माहौल है, जो वहाँ की डेमोग्राफी है उस गांव की, ये बहुत ही डिफिकल्ट होगा इन लोगों के लिए हाथरस में लोकल में केस को फाइट करना. इसीलिए योगी आदित्यनाथ जी ने जो कमिटमेंट किया है कि इस परिवार को वो एक मकान दिलवाएंगे, अभी तक उसको फुलफिल नहीं किया गया, क्योंकि डीएम हाथरस ने बायस्ड तरीके से अभी तक इस केस में कोई भी जो भी कमिटमेंट किए थे वो फुलफिल नहीं किए. कि उनका ये मानना है कि ये फैमिली हमारे अगेंस्ट कैसे आवाज उठा सकती है. तो आपके चैनल्स के माध्यम से हमारा उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने कमिटमेंट किए हैं तो इनको फुलफिल कीजिए,
ये परिवार को सिक्योरिटी सेफ्टी देना और इसके साथ जस्टिस हो, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एज ए लॉयर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन आपके राज्य में है ये, इनको सुरक्षा देना और जो कमिटमेंट किया उसको फुलफिल किया जाए। तो परिवार की डिमांड के अनुसार हमने कोर्ट में भी एफिडेविट में ये रिक्वेस्ट की है कि इनको दिल्ली में अकोमोडेशन प्रोवाइड करवाया जाए परमानेंटली, और उस बेस पर हम केस को भी दिल्ली ट्रांसफर करवाएंगे। मेरा जो फर्स्ट स्टेप है वो यही होगा कि केस को हम दिल्ली ट्रांसफर करवाएं। बहुत शुक्रिया सीमा समृद्धि जी हमसे जुड़ने का। मैं जो विक्टिम के भाई हैं उनसे बस यही कहना चाहूंगी कि आगे लड़ाई आपकी लंबी है, आपको न्याय मिले, बस हम यही चाहते हैं। और जो हम रिपोर्ट कर रहे हैं हम वो करेंगे, चाहे और वो हम सही रिपोर्ट करेंगे, जो सही है हम वही दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। थैंक यू मिलन फॉर जॉइनिंग अस। इज दिस विंडिकेशन फॉर अ स्टोरी दैट वीव कवर्ड सो डॉगedly under immense pressure? Yes, it is. But who is this vindication for ultimately? For a girl who's dead, 19-year-old, character assassinated. Today, the CBI says she was gang raped, she was murdered. Thank you for joining us. Up next is Rahul Kanwal. Hi everyone, Preeti Chaudhary here. Hope you like this video. For latest news and analysis, like and subscribe to the India Today YouTube channel. And don't forget to press the bell icon to stay updated. Thank you for watching.